to mic. Hello. You're good. You're good. We're live now. Okay, Nishant. Okay. Hello and Jai Hind everyone. I'm Major Mohammed Ali Shah और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अभी एक मेरे बहुत ही करीबी बड़े अच्छे दोस्त, एक बेहतरीन एक्टर, एक वेरी हार्ड वर्किंग कलाकार, एक मंजे हुए खिलाड़ी ऑफ द फील्ड, उनके साथ गुफ्तगू में होऊंगा. ये बहुत अच्छे इंसान है and he is a great person. You can see him. He looks dashing. He looks handsome. And जितना वो दिखते हैं, अभी आपको दिख रहे हैं इतने खूबसूरत, उतना अच्छा ये बोलते भी हैं. इनकी बड़ी अच्छी फिजिक है, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़े अच्छे डांसर भी हैं. ये बात मालूम नहीं थी. मैंने हाल ही में रील देखी इंस्टाग्राम पे. ऐसा bloody hell man, he was dancing very well. He was matching steps with Hrithik Roshan. और खास बात ये है, कल फिल्म रिलीज होगी फाइटर. ठीक है ना, सब जानते हैं बहुत हाइप बनी हुई है. मैं खुद फौजी आदमी हूं और हम सब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ऋतिक रोशन बाय द वे. I think he's a great actor and he has everything. But for the first time, I'll be watching a film not for Hrithik Roshan, but for my dear friend Nishant Kkhanduja. Yes, let's go ahead further with him and let's talk about his journey coming from Rajasthan and now to be an actor. And several other things are planned up for, and हमारी दुआएं हैं कि इनकी कामयाबी बस आसमान छुए वाकई में. अब आइए इनसे बात करते हैं. निशांत, thank you for spending time, brother, and Jai Hind. Thanks a lot, Mohammed. It was a very elaborative introduction. I was not anticipating this much. I was anticipating maybe 2 or 3 lines for my introduction, but you nailed it, man. I never felt that proud of myself. But your words made me feel that how much I have done in life, man. But thank you. Thanks a lot for this invitation, and it was a very sweet gesture of yours that you invited me for this small talk show. And regarding since माहौल बना हुआ है इस फिल्म के बारे में, so मैं पहले इस फिल्म के बारे में लोगों को बताना चाहूंगा कि कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है. सो आप सभी लोग जितने भी देशभक्त हैं, हम सभी लोग, आप लोग सब जाइए देखिए कि कैसे जो हमारी फोर्सेस हैं कितनी मेहनत करती हैं इस देश को बचाने के लिए. मतलब कैसे कैसे स्ट्रगल्स होते हैं, कैसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी आते हैं. फिर भी ये लोग जवान देश की सीमा पे खड़े रहते हैं हम सबको चैन की नींद देने के लिए. So, salute to these guys first. This entire film is dedicated to these soldiers only. Thanks, yeah, Nishant. I swear, that's great, yeah, great spirit. बाकी रही बात जो आपने इतना कुछ बोला कि डांस को लेके, इन सब चीजों को लेके, तो मैं तो ये कहूंगा कि हार्ड वर्किंग, जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, यू जस्ट सरेंडर. बिकॉज आप भी एक एक्टर है, जो कि आपको पता ही है, कोई भी आर्ट सीखना हो, कोई भी स्किल सीखना हो, यू जस्ट नीड टू सरेंडर योरसेल्फ. आपने अपने आप को सरेंडर किया और धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, तो मे बी आफ्टर 15 days यू वुड सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ. एंड दैट्स द मैजिक. इट वाज नॉट मी, आई वुड से ये कृपा थी उस गुरु की जिसने मुझे सिखाया. तो ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है उस गुरु को. So you mean to say you didn't dance like this earlier? No, not much. It's like I was one of those who's a wedding dancer. Oh wow. So, wedding dancer, if you tell me, okay, so we have a ladies sangeet, these are the steps you have to perform. Okay, I'll do it. So this is what I can do. And you need to have, let's say, I would say, good ear. If you have a good ear for the beats, you would perform the right step. Then you start enjoying it. And then finally, yes, you see the magic. Wow, yeah, wow. There is a myth which guys like you have busted, which was earlier. If you have muscles, if you have a lot of rippling muscles, so you cannot dance. But ऐसा कुछ नहीं है. ऋतिक रोशन ने भी वो myth तोड़ी है, सलमान खान ने भी वो myth तोड़ी है, आपने भी वो myth तोड़ी है. टाइगर श्रॉफ भी है. जी, टाइगर श्रॉफ भी है. एग्जैक्टली. पहले ये myth होती थी कि या तो आप बॉडी बना लो, या तो आप अच्छे से डांस कर लो, या तो आप अच्छे एक्टर. एक और one more thing I want to dedicate this to you, in fact, and I think you are a classic example of that. I have done theater workshops and acting workshops, और एक नॉर्म है, एक टाइपकास्ट है कि अगर आप खूबसूरत दिखते हैं
और अगर आप नाचते भी हैं बहुत अच्छा, तो मतलब आप इतने अच्छे एक्टर नहीं होंगे. ऑन द अदर हैंड, if you do not look so good, if you look like a common man, and if you do not sing and dance, अरे बड़ा अच्छा एक्टर होगा, बड़ा सीरियस एक्टर है. It's a myth. It's a myth. I am It's a calling it myth. a myth. It's It's a a myth. myth. Absolutely right. Yeah, yeah. अभी Right? अरे होता नहीं इसमें है. मैं क्या बोल सी when it comes to looks and all, so I would say इसमें आप कुछ कर नहीं सकते. ये तो हेरिडिटरी है Yeah, ना, जो आपको पेरेंट्स से yeah. मिल गया. That's it. Now whatever you have got. So मैं एक चीज अपने कॉलेज में भी काफी लोगों को बोलता था और उसके बाद भी बोलता आ रहा हूँ. You know, God has gifted you certain things. It could be brain, it could be looks, it could be something else also. Now it's your responsibility to nurture it. So I have been given, see, earlier, till let's say 24, I never planned to become an actor. So, okay, so if you just, Google it, you would come to know that, He's I not talking graduated. about the year 24. He's talking about the age 24. All right. I'm talking about the age 24. Yes, absolutely right. so, so what I was saying is, till that age, I was not planning to become an actor. So I graduated and post graduated from IIT Bombay in aerospace Wow. engineering. So Wow. देखो till दोस्तों, then, दिमाग भी है. एक और मिथ कि एक्टर कम पढ़े लिखे होते हैं भाई. हाँ. आईआईटी पवई के सोच लो. राइट. But एंड honestly ये saying, कॉम्बिनेशन है आईआईटी आईएम का, बिकॉज आई एम सो, और ये आईआईटी से है. ओके, गो अहेड. अच्छा. तो हाँ, सो तब तक हमारा ये चलता था कि यार दिमाग अगर भगवान ने दिया है तो जितना हो सके इस दिमाग को यूज करते हैं. नो, लेट्स फिगर आउट, लेट्स, बिकॉज मेरे कुछ पेपर भी पब्लिश है. इफ यू सर्च यू विल कम टू नो. मैंने एक कॉन्ट्रा रोटेटिंग कंप्रेसर पे एक पेपर भी पब्लिश किया था अपने बैचमेट्स के साथ मिलके. तो जब तक हमारे पास ये चीज को यूज करना था, दिमाग को यूज करना था, हम लोग उसको अच्छे से नर्चर कर रहे थे. नाउ नाउ यू आर देयर इन एक्टिंग फील्ड. You have to use your craft. So obviously, brain will help you to take the right decision. But since you need to look good on camera also, because this is one sort of requirement for the character. Sometimes it is character, but sometimes you need to look ugly for the character also. So I say, rather than focusing much on the looks, we focus more on the character's look. So people somehow perceive me, let's say someone who is a brat, someone who hails from South Bombay. So I try to maintain that. Okay, so this sort of work is coming for me, so let's maintain that, because I do not want to lose an opportunity. After all, we all are working here in this industry, and whatever conceptions are there for us, so we would like to first grab those opportunities, prove ourselves as an actor. Then later on, we can experiment with our looks and then show people that yes, we can play multiple roles. It's not about only one specific role, multiple roles. Wow. This, what you mentioned was very interesting about IIT Powai. Now tell me Right. a bit, because बहुत से IIT Powai के थे मेरे साथ में जब मैं IIM कलकत्ता में था हमारे साथ वहाँ पे. अच्छा. After doing IIT they come there. Yeah. So I have a very soft corner for them, and of course I have performed at Mood Indigo Festival. We Oh, did a play. lovely. Mudai के हमने जब कॉलेज में थे अपने from Pune Ferguson College, Hmm. we have performed at IIT Powai. So tell us about your time at IIT Powai. Tell me about that. And did you always want to be an engineer? Well, आपने कहा 24 तक आपने सोचा भी था एक्टिंग के बारे में. So how was हाँ. it like at IIT? So मैं जिस शहर से आता हूँ बहुत छोटा शहर है, भरतपुर राजस्थान में है. वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है पढ़ाई. अगर आप उस शहर से निकलना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है नहीं वहां पर. तो हम लोग पढ़ने लग गए थे. बाद में हमारे को मेरा जो एक सीनियर था, ही वाज माय इंस्पिरेशन, अर्जुन सिंघल. सो उसने प्रिपेयर किया, तो मैंने कहा कि मैंने थोड़ा बहुत आईआईटी के बारे में पढ़ा कि अरे यार, सो दुनिया मतलब स्पेशली इस देश के जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं, स्पेशली दोज हु लाइक्स those who like maths and science, they prefer going to IIT. तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे खुद को साइंस पसंद है, मैथ्स पसंद है, सो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर दिस. मैंने उससे गाइडेंस काफी हद तक ली. उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया और फाइनली मैं आईआईटी में चला गया. इनिशियली व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग, वो जो मेरे सीनियर थे अर्जुन सिंघल, वो गए थे आईआईटी बीएचयू में. तो मेरी बस ख्वाहिश इतनी थी कि कैसे भी करके मेरी रैंक उसके बराबर 3200 के आसपास आ जाए, मेरे को आईआईटी बीएचयू मिल जाएगा. दिस वाज माय
लिटरली आई वाज प्रेइंग दिस टू गॉड. अब होता क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 3 इडियट्स में ही बोला था, डो नॉट रन टुवर्ड्स द रिजल्ट, रन टुवर्ड्स द एक्सीलेंस. राइट. बस सिर्फ सीखने में फोकस था. किस्मत से मेरी रैंक आती है 1200 के आसपास और मेरे को मिलता है आईआईटी बॉम्बे. एक तो सपना टूट गया कि मैं अपने सीनियर के पास गया नहीं, चलो बट आईआईटी बॉम्बे मिल गया. और वहां के जो 5 साल थे वो मेरे को ऐसे लगते हैं जैसे मेरे वो 5 दिन थे. इनिशियली वाओ. आई वाज लाइक अ बीटेक स्टूडेंट. मैं गया था 4 ईयर प्रोग्राम के लिए. मन नहीं था उस जगह को छोड़ने का, बिकॉज वो जो जगह है ना, वो बिल्कुल बॉम्बे के सेंट्रल में, एंड इट यूज टू बी लाइक अ हेवन. आप बिल्कुल सेंट्रल बॉम्बे में हैं, कोई रश नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, इट्स ग्रीन, यू हैव बीन देयर. सो जैसे आप अंदर जाएंगे उस कैंपस के अंदर, एकदम ठंडा कैंपस, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं इस बॉम्बे शहर की. जैसे आप बाहर आते हैं बॉम्बे शहर में इतनी टेंशन है. आई सी माई एक्टर्स फ्रेंड्स ऑल्सो, दे दे सफर फ्रॉम लोनलीनेस. बहुत सारी टेंशन है यहाँ पे, और वहां कोई टेंशन नहीं और आपके पास सारी फैसिलिटीज है. सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट हेवन. गए थे 4 साल के लिए, मन भरा नहीं था हमारा अभी भी. तो मैं और मेरा बैचमेट, हम लोगों ने 3rd ईयर में एक एप्लीकेशन लिखी थी अपने डीन डीन अपना क्या नाम है, डीन एडमिनिस्ट्रेटर, डीन अकेड्स, हाँ डीन ऑफ अकेडमिक्स को, कि वी वांट टू परस्यू मास्टर्स आल्सो. ओके. लकीली हमारे क्रेडिट्स हो चुके थे, तो हमारे को 1 साल और पढ़ना पड़ा. तो हमारे को 5 साल में बीटेक की डिग्री भी मिली और एमटेक की डिग्री भी मिली. अरे उसके क्या बाद बात है. हाँ अरे हाँ, क्या बात है. So you तो are a master's as well, not just a bachelor's, but a master's. There you मास्टर्स इन are. टेक्नोलॉजी. So there तो you are, ladies and gentlemen. जो हमको देख रहे हैं भाई, एक्टर कम पढ़े लिखे होते हैं, वो 12वीं ड्रॉप होते हैं या ग्रेजुएशन नहीं करते. यहाँ पे आप देखिए, बैचलर्स ही नहीं, मास्टर्स, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी. वो भी कहाँ से? वो भी द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, फ्रॉम आईआईटी पवई दैट टू. यस निशांत, प्लीज गो अहेड. तो बाकी आप जो कह रहे हैं कि एक्टर्स पढ़े लिखे नहीं होते, आई वुड नॉट रिकमेंड पीपल टू कंसीडर दिस स्टेटमेंट. आप अगर अपने चाचा जी की बात भी करें, नसीर साहब की, मैंने नसीर साहब के काफी इंटरव्यू सुने. वो बोलते थे भाई अगर एक्टर बनना है ना, पहले पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है. ऑनेस्टली सेइंग, जितना मुझे आईआईटी में नहीं पढ़ना पड़ा ना, उसके बाद मुझे पिछले 5 सालों में उतना पढ़ना पड़ गया है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. A science student, when he tries to pursue anything in literature, it becomes very difficult. क्योंकि साइंस स्टूडेंट क्या है, लॉजिकल सोचता है बहुत हद चीजें. Whereas in art, it is more about being there in that moment. कि आर्ट तभी क्रिएट होता है, मैजिक तभी आता है जब आप बस उस मोमेंट में हैं और आप कुछ कर जाए. लोगों को लगती है वही चीज वाव है. अगर आप प्लान करेंगे ना कि हाँ मैं सीन में ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, पीपल वुड कम टू यू एंड डायरेक्टली दे वुड से, तूने प्लान किया था ना, वो फटाफट पकड़ में आता है लोगों के. सो एक्टिंग में वो नहीं चलता. साइंस में हम लोग बहुत ऐसा कुछ करते हैं, पीपीटीज बनाएंगे, फर्स्ट वील डू दिस, ओके इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा, देन वी ड्रॉ कंक्लूजन आल्सो. आर्ट में इट्स नॉट लाइक दैट. यू जस्ट नीड टू डू द रॉ वर्क, क्राफ्ट पे काम करते रहो, देन यू लेट योरसेल्फ फ्री एंड देन सी द मैजिक. तो बहुत बहुत टाइम लगा था मुझे इस चीज को समझने में. मेरे टीचर ने मुझे, स्पेशली एक्टिंग टीचर ने, और अगेन अगेन आई वाज प्रिविलेज, मेरे को लोग अच्छे मिले. मैं यहाँ आया तो मुझे एक टीचर मिले, राघव अग्रवाल. सो दिस गाय केम बैक फ्रॉम न्यूयॉर्क. ये थे वहां पर विलियम एस्पर स्टूडियो में, ये माइजनर टेक्निक सीख के आए थे. ये मैं मिले और इन्होंने मेरे को सिखाया. मैं अभी तक इनके पास हर साल जाके एक एक वर्कशॉप करता रहता हूँ महीने भर की. एंड मानिए सर, मेरे अंदर जो जितना चेंज आया ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस गाय. आई वाज सो लकी इनफ दैट दिस गाय मेट मी समहाउ. अदरवाइज मैं देखता हूँ यहाँ पर लोग आ जाते हैं, पता होता नहीं कि क्या करना है, कैसे करना है. कोई बोलेगा थिएटर करो. अब थिएटर में बैठे रहना से कुछ नहीं होता, आपको एक डायरेक्शन भी तो चाहिए कि आप किस चीज पे काम करें. आपको स्क्रिप्ट आ गई, आप स्क्रिप्ट पढ़ते रहेंगे. अब स्क्रिप्ट कब जाके आपसे बोलेगी, यू नीड टू लर्न दैट. क्या बोलते थे हम लोग हिंदी में, बोलते थे ना कुंजी. आपको कुंजी मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप थोड़ा बहुत समझेंगे ना. आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, पर आपको गाइडेंस तो मिले कि करना कैसे है, वो स्किल तो मिले. उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करिए ना. देन यू डू दोस प्रैक्टिकल वर्क एंड सी वेदर इट इज वर्किंग फॉर यू और नॉट.
सो ये बहुत बड़ी चीज है जो मिस आउट करते हैं काफी लोग यहाँ पे. Absolutely, absolutely. So tell me, when you were in IIT, that time you made up your mind. तब आपका क्या ऐसा क्या हुआ that you said, okay, now मैं engineering में नहीं, now I'll go towards the creative arts. As what was the turning point? तो टर्निंग पॉइंट आया था मेरे पास मेरे फोर्थ ईयर में आया. सो फोर्थ ईयर में मैं ट्रैवल कर रहा था बाय ट्रेन. सो दिल्ली, बॉम्बे टू दिल्ली. और Like how we met, like how we यस also met. एब्सोल्युटली राइट. सेकेंड टाइम इन लाइफ वी मेट इन द ट्रेन. Yeah. सो मैं ट्रैवल कर रहा था और वहां पर एक उस समय आई थी प्यार का पंचनामा. उसके एडी हाँ. थे उसके एडी थे वरुण मोंगा. तो वो बिल्कुल मेरी ऑपोजिट सीट पे बैठे थे और ऐसी कॉन्वर्सेशन चालू हुई. तो उन्होंने पहले ही छूटते कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं यार, यू आर गुड लुकिंग गाय, आप एक्टर हैं क्या. सो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो एक्टिंग से कोसों दूर हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है एक्टर एक्टर बनने का. देन ही वाज लाइक, अरे यार आप बॉम्बे में हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए. अब मुझे लगा कि क्या बात कर रहा है, कुछ मतलब तो है नहीं, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं. कहाँ हम लोगों का एक साल के बाद प्लेसमेंट हो जाना है, लाइफ इज ऑल सेटल्ड. ये क्या बोल के जा रहा है. बट ठीक है, चलो कॉन्वर्सेशन काफी बात हुई, थोड़ा सा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा. Then after my campus placement back in 2013, so I spoke to my parents and I told them कि मैं एक acting workshop करना चाह रहा हूँ एक महीने की. So then I went to Actor Prepares and I enjoyed this weekend workshop. अनुपम खेर, अनुपम खेर. हाँ, Anupam वहाँ Khair's. पे And जुहू I साइड था वो, enjoyed this. जुहू साइड में थे. Pardon? जुहू में जो रजराज के हाँ, जुहू ऊपर. में जो है. ओके जी ओके, जी हाँ. जी जी जी. सो राइट. एक महीने मैंने वहां वर्कशॉप करी और मुझे काफी मजा आया. अपार्ट फ्रॉम माय aerospace branch, I was enjoying that particular acting field much. So I told my parents that I would like to explore this field, and they were like, "Have you gone mad? You're going back to zero. Why? You have spent 5 years. You're already placed. You have 1.5 lakh rupees per month as your salary. People literally die for it because unluckily, और people वो भी तब tough. 2013 में, तब हाँ, एग्जैक्टली 2000, वैल्यू correct. और भी So और ज्यादा थी. yes, it was pretty good package. So my parents tried to made me understand, and they literally went into depression also. I'll tell you the reason why. Because generally, what happens in middle class family is that especially parents, they sacrifice a lot and they make sure that once their kids stand, then they would live their lives happily. This is the general practice we see everywhere in middle class families. They'll cut down their expenditure, they'll save for the admission fee, they'll save for tuition fees. Multiple things are there, sometimes for extracurricular activities also. So my family was literally waiting for me to just graduate and start working so that they can just join me and enjoy the life. Because I was the only son, I have my younger sister, but somehow बेटे से वो होता है ना कि बेटा हमारा सब कुछ करेगा. एक एक छोटा सा एक एंटिसिपेशन रखते हैं ये लोग, एक इतनी सी एक्सपेक्टेशन होती है. तो मैंने ऐसा बोला, एंड माय मम, बिकॉज शी हैड मल्टीपल ड्रीम्स, शी यूज्ड टू टेल मी, तेरा एक बार हो जाए तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे. एंड आई लिटरली shattered all those dreams by just saying this, that I would like to pursue acting. I would not like to opt this job. And the scene happened at my home. It was so sad, so sad. Everyone, be it my father, my mother, everyone there, they were completely into depression. So what I did, I just joined the firm. I took Gurgaon branch. So I used to work there every alternate weekend. I used to meet my parents, go there, convince them that yes, you know, I would like to, do acting. And, I'm enjoying this job. That's why I've taken it. I'm enjoying it. But, when it comes to, taking a better choice, I would like to pursue acting as a full-time profession. So after 2 years, they, especially, my father first, he got convinced because he saw the results. Because I was there in a trading firm. I used to trade futures and options. So my father, literally told this to my mother that, see, this guy, when he doesn't like this particular profession this much, but he is exceeding. He's doing good work better than his colleagues. If we let him go to his chosen profession, he'll do magic. Just let him go.
My father convinced. My father convinced my mother. So this happened back in 2016 September. तो Finally, लकी थ्री इडियट्स भी का भी रेफरेंस दिया होगा आपने, थ्री इडियट्स का भी? हाँ, नहीं वो तो एग्जाम्पल नहीं दिया, बट मैंने काफी सारे बायोग्राफीज उनको बहुत पढ़ाए थे, बहुत सारे, कि देखो जिन जिन लोगों ने अपना पैशन फॉलो किया, देखो आज वो लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग ना मुझे भी जाने दो। और रही बात सपोर्ट की, देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैं अपने कॉलेज डेज से अपने पेरेंट्स से नहीं ले रहा था। तो फाइनेंशियल सपोर्ट कभी भी एक रीजन नहीं था। बस ये था कि आपको क्या डर है कि मैं एक अच्छी लाइफ नहीं जीऊंगा। आप उसको बेफिक्र रहिए, बिकॉज आई हैव डन गुड सेविंग्स इन दीज 2 years। तो लाइफ एक अच्छी रहेगी, आपको कभी लगेगा नहीं कि आपका बच्चा कहीं सफर कर रहा है। बाकी डो नॉट वरी अबाउट द बैड चॉइसेस आल्सो, बिकॉज पीपल आर स्केप्टिकल अबाउट दिस इंडस्ट्री, कि लोग जाते किसी चीज के लिए गलत चीजों में पड़ जाते हैं, समटाइम्स दे गेट डिप्रेस्ड आल्सो। तो आप उन चीजों के बारे में मत सोचिए, आप बस जाने दीजिए। बाकी तो हम लोग मिलते रहेंगे, आपको मालूम रहेगा कि मेरी मेंटल स्टेट कैसी है। बाकी वाह जिस दिन हार मान लूंगा उस दिन वापस आ जाऊंगा, बस ये बोल के आया वाह, था मैं। एंड देन उसके बाद तो हार तो नहीं बल्कि एंजॉय करता चला गया। एक बार बस समुंदर के बीच में आ गया, फिर तो ये था कि बस दूसरे किनारे पहुंचना है। फिर ये नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है, पीछे जो हो रहा है होने दो, तुम आगे बढ़ो। wow, that is like, that reminds me of a poem by Khalil Gibran. खलील जिब्रान ने लिखी है द प्रॉफिट, उसमें हाँ, प्रॉफिट में से एक है फियर। हाँ, ओके। तो फियर, व्हाट यू स्पोक जस्ट नाउ इज एग्जैक्टली व्हाट खलील जिब्रान रोट। ही राइट्स, it is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled across the peaks of the mountains, the long winding roads crossing forests and villages, and in front of it she sees an ocean so vast that to enter seems nothing more but to disappear forever. But there is no other way. The river cannot go लव, back. Nobody can go back. To सिर्फ go back आई is थिंक impossible existence. The river now has to take the risk of entering the ocean because it is now that fear will disappear and the river will know it is not about disappearing into the ocean but of becoming the ocean. So, वही वाली what he लवली said. मैन, लवली यार, दिस इज सो नाइस। डू डू शेयर इट विद मी। I देखिए will, I will. मैं हिंदी वाली पोयम सुनता रहता हूँ। Yeah. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, अरे भैया, सुनाओ कोशिश सुनाओ करने सुनाओ सुनाओ वालों सुनाओ। की हार नहीं होती। ये मेरे लिए है। सो मेरे लिए लहरों और से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार लोगों नहीं की होती। हार एक नहीं नन्ही होती। ये चींटी चींटी जब जब दाना दाना लेकर लेकर चलती है, चलती है, चढ़ती दीवारों धरती पर 100 बार दीवार से सौ फिसलती है। बार बदलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरना गिरकर गिर कर चढ़ना ना चढ़ना करता। ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों कोशिश की करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। बिल्कुल। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, डर पड़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। That's for you, निशांत, for ब्रिलियंट you. यार, ब्रिलियंट। Thank you. ये सोहनलाल द्विवेदी ने असल में लिखी थी ये कविता, जो कि हरिवंश हम्म, बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी बाद में, क्योंकि बिल्कुल। अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन कौन बनेगा बनेगा करोड़पति में करोड़पति कही थी। कही तो थी, बाद में बिल्कुल। बच्चन साहब ने इसको ट्वीट भी किया, क्लैरिफाई भी किया कि ये कविता दरअसल असल में है सोहन लाल द्विवेदी की कविता। सो एनीवे, सो आई लव इट यार। आई मीन बिकॉज़ पोएट्री लाइक, यहाँ पे एक इंजीनियर आप, the way you said, you, I mean it is like very heartening to see a technical person become an artist. अच्छा, उसके बाद you were telling a very interesting journey. You had no godfather in the industry, no contacts, no connections, but yet you have made a respectable name for yourself, and you are in acting in a very big film. Up now I know, I understand this fact. You might be having a slight skeptical thing in your feeling, because मैंने बड़ी 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 पिक्चरों में काम किया, but उसमें small role था मेरा, हाँ, and I was हम्म, like scared.
कि भाई अब मैं बहुत लोगों को बताऊं कि मैं भाई बजरंगी भाईजान में हूँ, फर्ज करो। हाँ, उसमें था मैं, उस फिल्म में एक्टिंग करी विद कबीर खान, सलमान खान एंड ऑल। अब इट वाज लाइक अ वेरी स्मॉल रोल और इन अ डिफरेंट गेटअप। लोग मुझे कहाँ भाई कहाँ थे? So does that feeling also come in? But it should not come in. That's my advice to you as a brother. That feeling should not. I'll tell you why also. But does that feeling come in, Nishant? नॉट राइट नाउ, बिकॉज अभी तो मेरे हाथों में कुछ है ही, खाली हाथ है। सो जो भी मिला वो बहुत है। मैं तो अभी ये सोच के चल जहाँ रहा हूँ, जाकर इतना कुछ सोच खाली नहीं हाथ रहा हूँ। लौट आता है, वही वाली हमने बात की थी अभी। हाँ, सो अभी बस खाली हाथ है तो कोई बात नहीं है, चाहे छोटा रोल से, बिकॉज छोटा ही एक दिन बड़ा बनेगा। मेरा मानना तो यही है Yes. कि छोटा ही एक दिन बड़ा बनेगा। आप नवाज को देख लीजिए, हमारे पास इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं बहुत सारे। सो इट इज अ वेरी सिंपल टेम्पलेट और पैटर्न यू कैन सी। कोई भी आउटसाइडर है, पहले छोटा रोल करेगा, उसके बाद उसको धीरे धीरे बड़ा मिलता जाएगा, एंड ग्रेजुअली ही विल मेक अ स्पॉट फॉर हिमसेल्फ। Exactly. You know, the journey to 1,000 miles begins with a single step. और वो करेक्ट। मजरू सुल्तानपुरी ने भी कहा था ऐसा ही। उन्हें कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। And that's your, बिल्कुल। that's why I've named this guy on the YouTube ना, put over there, fighter in real life and in real life. फाइटर मतलब मैं ओ फाइटर मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइटर तो हाँ, तो आप बिल्कुल हो। सही है, या रियल लाइफ में भी। यस, अरे वाह, थैंक यू यस यार, ये तो दिस इज अ यस, रियली गुड कॉम्प्लीमेंट, रियली गुड अरे कॉम्प्लीमेंट। थैंक ब्रो। सो फिर आप नाउ यू हैड डिसाइडेड कि भाई एक्टर बनना है, इंजीनियरिंग डिग्री हो गई, अच्छा प्लेसमेंट हो गया, मगर आप कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो आपने वो प्लेसमेंट अच्छी खासी 1.5 लाख वाली तनख्वाह को, वो भी 2013 में आपने बोला कि हाँ, भाई उसके बाद लाओ। तो बढ़ भी चुकी थी, वो बढ़ भी चुकी थी, बहुत बहुत दुख हुआ था। मैं दुख तो क्या हुआ था एक बार के लिए, ये कॉन्फिडेंस था कि पैसे तो जिस दिन चाहे उस दिन कमा लेंगे। हर बार ये वाओ। थॉट था। तो ये चीज मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी जो वाइफ है उसको भी बोलता रहता हूँ कि भाई पैसे की टेंशन मत ले, पैसे जिस दिन चाहे उस दिन कमा लेंगे। क्योंकि जो ज्ञान है वो कभी वो दिमाग से निकलेगा नहीं, वो दिमाग के अंदर ही है। लोगों को लगेगा कि भाई थोड़ा सा जंग खा गया है, ये हो गया है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू जस्ट रिफ्रेश इट एंड देन अगेन गो बैक टू द इंटरव्यूज। इफ यू कैन नेल द इंटरव्यू, तुम्हारे को जॉब उसी दिन मिल जाएगी। सो हमेशा से कॉन्फिडेंस था, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते ही मैं एक्टिंग में बेहतर कर पाया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, कई बार लोगों को सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं एक बेहतर एक्टर हूं या नहीं, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये सब। मेरे अंदर ये डाउट नहीं था। मेरे अंदर पता है क्या होता था? मेरे अंदर डाउट ये आता था, अगर मैं सही एक्टर, अच्छा एक्टर नहीं हूं, तो मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ? दिस वॉज माई हम्म। क्वेश्चन। सो मैं क्या करता था कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे में ये कमी है, मे बी लेट्स से माय vocab is not good, my voice is not good, my voice let's say doesn't have a good base first, maybe I'm not being there in that moment, मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा हूँ, मेरी क्राफ्टिंग में गलती है। सो आई यूज टू टेक वर्कशॉप्स। कोई बात नहीं, सीखो, आज नहीं कल सीखोगे, परसों सीखोगे, 7 दिन के बाद यू सी अ रिजल्ट। मैच योर वॉइस, मैच योर वर्क ऑल्सो। पहले जो तुमने सीन किया था उसमें कितनी प्लानिंग थी, आज 7 दिन के बाद देखो वो सीन कुछ और ही है। सो क्वेश्चन हमेशा यह था, इससे अच्छा कि मैं एक अच्छा कलाकार नहीं हूं, ये क्वेश्चन को पूछने से बेहतर है कि मैं बेहतर कैसे बन सकता हूं। वो बेटर क्वेश्चन है आपके लिए, यू विल इंप्रूव एवरी डे। Right. No, and Nishant, do you know of any other IITians who became actors or who अरे were, yeah, यस यस, I देर think आर I know who you're सो going to be talking about, and before I say the name, I wanted to hear the name from you actually. okay, so you tell me, so from where should I start? I know multiple people, I know my Okay, gang really well. okay, okay. Start from the Okay, top. Start from the biggest actor you know of okay, so who is I'll connected. I mean, he may not be an IITian, he may not have hmm. passed out from IIT, but he had probably qualified for IIT. Even that would be good enough. Okay, so one is obviously Sushant Singh Rajput. He was there, so he was ranked 7 in IIEEE. So he's also there. So he was. I would say he's still there with us. He's still there Yeah, with us. yeah, yeah, yeah. So He's still Sushant is there with there. us. Now, if I talk about people, those who graduated from IIT Bombay and they are there in this industry. So one is there, your Nitish Tiwari sir. So the director of Dangal Chichore. So he's from IIT Bombay. Then you have Arunab Kumar.
the founder of TVF. He's from IIT Kharagpur. Then other co-founders like Bisupati, जनरली अपने अरिंदम गोस्वामी का स्पूफ करते हुए देखते हैं. So he is also from IIT Kharagpur. Then you have Jitu Bhaiya, Jitendra Kumar. He's from IIT Kharagpur. Then there is one more guy called Amol Parashar. He's from IIT Delhi. So वो हैं. Then काफी सारे writers हैं IIT Delhi, IIT Bombay से, जिनमें से एक हैं आप डायरेक्टर भी हैं, पंचायत के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा. देन अभी भी एक आई थी फिजिक्स वाला, उसके राइटर समीर मिश्रा, वो हैं. काला पानी आई थी अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज, उसके डायरेक्टर जो हैं समीर सक्सेना. ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. सो बहुत सारे लोग हैं सर, बहुत सारे. वाओ वाओ, ये एक ट्रेंड बन गया था बेसिकली, खास तौर से basic for any film festival when you hear someone, a director or a writer or an editor speaking, so basically I'm an engineer. तो ये एक norm बन गई थी. Basic start with basically I'm an engineer, now I write, now I am into creative arts and all that. Great. But I think sorry, I'm just cutting you here. So generally क्या होता है कि when you do engineering, so engineering का अगर आप first objective भी देखेंगे तो क्या है, हमेशा आपको प्रोडक्ट बनाना है एंड यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज. सो आपकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है. नाउ जस्ट इमेजिन, नाउ यू स्टार्ट नोइंग योरसेल्फ. नाउ यू नो दैट यस, आई एम वन ऑफ दोज हु कैन राइट प्रीटी वेल एंड आई एम जस्ट ऑप्टिमाइजिंग व्हाटएवर स्किल्स आई हैव गॉट. So this is what these people are doing. All these engineers I know out there. So what they are doing is they're just optimizing their skills. That's it. That's very true. I know of some engineers who became journalists and some people who, and yeah, I see this way, I was a commerce student in 11th, 12th, and then I took arts in my graduation. So I see this way, as an art student, I couldn't have changed my stream to commerce or art or science. But a science student has a liberty to change to commerce or arts. A commerce student has a liberty to change it to arts. So I think you were very lucky and fortunate, and also to your hard work. Hard work in not in terms of bodybuilding and dancing only. Hard work in terms of the grey matter. भाई भरतपुर से अगर निकलने से आपने बताया पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो आपने पढ़ाई पिछले 5 साल में करी है, आपने बताया आपने वो पढ़ाई इंजीनियरिंग में नहीं करी. तो उसी से ही मैं कनेक्टेड एक आपसे पूछता हूँ. देखिए, माइजनर एंड स्टैनिस्लावस्की, मैंने दोनों के बारे में एक्सटेंसिवली पढ़ा है, ठीक है. बल्कि स्टैनिस्लावस्की का जो मेथड है, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वो मेरे मेंटोर नसीर साहब भी सिखाते हैं स्टैनिस्लावस्की का. टू डू थिंग्स, टू बिलीव इन समथिंग एंड टू डू इट, टू जस्ट यू डोंट एक्ट, यू डू इट. you dwell into actions. करेक्ट. सो अगर मैं आपको बोलूं, सिंस यू हैव वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन माइजनर, अगर मैं जानता हूं इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इट्स नॉट इजी टू टेल, बट अगर हमारे कुछ एस्पायरिंग एक्टर्स सुन रहे होंगे तो आप उनको क्या सलाह देंगे ऑन माइजनर? ओके, सो माइजनर में मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी सामने वाले के जो शब्द हैं, जो सेंटेंसेस है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए. यू लिसन टू द टोनैलिटी. आपकी टोनैलिटी से बहुत कुछ फर्क आ सकता है. व्हाट आई मीन टू से इज कि जनरली ये काफी सारे एक्टर्स के साथ मैंने देखा है होते हुए. और जैसे आपको एक स्क्रिप्ट मिली, मान लीजिए एक आपकी एक आपका फीमेल कैरेक्टर है और एक मेल कैरेक्टर. द सीन इज एंटायरली अबाउट फाइटिंग. दे आर फाइटिंग, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है. एंड आफ्टर लेट्स से सर्टेन लाइंस यू सी देयर इज अ लाइन रिटन, आई लव यू, बाय मेल कैरेक्टर. सो मेल कैरेक्टर वुड बी सेइंग दैट लाइन, आई लव यू. So what you would see with the other actors is they'll be literally going through the entire chunk, and just before that line, they will change their mood themselves, and they'll go close to the female character, and they would say, "I love you," because हमारे I love you बड़े प्यार से बोलेंगे, I love you. पूरा आपने क्या करा? आपने पूरा जो ऑनेस्टी थी उस सीन की, आपने उसको छोड़ दिया और डायरेक्टली आप बस उस ट्रैप में फंस गए. Whereas Meisner आपको क्या बोल रहा है? Meisner कह रहा है, do not worry about these sentences. Do not worry about these sentences. You just be there in that moment. Whatever you feel in that moment, say it with honesty. So Meisner में honesty सबसे ऊपर है. That's why they keep saying be there in that moment.
So maybe let's say if I'm fighting with you right now and we are like brothers and I've done a lot for you, and when I need to say while fighting, I love you, so I might say, I love you, Mohammed. I'm not changing the scene. I'm still there in that mood and saying it, the line. So lines, these lines, these words, they don't matter. What matters is your emotion. What tone are you saying this line? All these things, they matter a lot. So I would recommend for Meisner, if aspiring actors they want to work, so how it starts, जो मैंने बताया तो थोड़ा सा upgraded version है, but what you can do is you can start knowing yourself. So when you will take Meisner, you would uh, you would break first your shell. Since we are staying in this social environment, so multiple things we have learned कि आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना है. अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप बहुत पोलाइटली बोल देंगे नहीं. माइजनर आपको पहले तो ये सिखाएगा कि कैसे अपने गार्ड्स को डाउन करना है एंड बी लाइक नॉर्मल नॉर्मल किड और लाइक एन एनिमल. Whenever whatever things come to you, feel it and say it. Whatever you feel it, say it. Whatever your first instinct. If you'll say all those things, gradually you'll become a better actor. Once you become better actor, then you can work on characterization. Multiple things are out there, but knowing yourself and knowing your impulses, this is very important, because in acting it is all about impulses. If you're following your impulses, you will create magic again and again. Very well said. Very well said. Very, very well said. So, and coming to one more question, how important do you think training is important for an actor? Like a lot of actors, they feel, "Kya humko training ki zarurat nahi hai," and hum aake. Now, I had not got through the National School of Drama twice, Okay. and in the year 2001 and 2002, in fact, Pankaj Tripathi and I are very old friends. So Pankaj made it in 2001. I didn't make it. So Pankaj told me, "Koi you baat know nahi Ali bhai, aap I dobara try was planning karega." to go to, I was, you won't even believe, I was planning to go to NSG and FTI. I wrote the application also in 2020. But unfortunately, this COVID came. Oh, I got all ho. those recommendations. I was मतलब you want prepared. to go to NSD later on, like after जो वो ट्रेन जर्नी हमारी थी, बल्कि आपको हमारी तीसरी मुलाकात भी मालूम याद होगी. अरे We मैं were अपनी passing शादी के by. बाद मैं सर अपनी हाँ, शादी के बाद जाने को तैयार था. अरे I वाह spoke to यार, that's I some spoke to my dedication. I spoke to my wife also. So my wife is very supportive. Very very supportive. I spoke to She's a her very कि मैंने sweet बोला person, कि yeah, यार, very, very sweet. मैंने जैसे बोला ना कि मेरा हमेशा क्वेश्चन क्या होता है, कैसे बेहतर बन सकता हूँ. अब देखो वही बात है कि आप समंदर में फंस तो चुके हैं, आपको जाना दूसरे किनारे पे. अब जब दूसरे किनारे पे जाना है तो आपको तैरना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो इट्स बेटर आप ये सोचे कि कैसे स्टेमिना आएगा, कैसे मैं और 1 किलोमीटर आगे बढ़ सकता हूँ. यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स. तो सोचा, बस किस्मत की बात ये रही कि कोविड आ गया, उसके बाद हम लोगों ने एडमिशन लिए नहीं. Then I was like, maybe I think it was not there for me. I need to be here in Bombay and hone my skills. पता है आपने जो समुद्र की बात करी, उस पे उसी पे मेरे को एक और चीज याद आती है. That बोलिए it's ना. like I suppose I want to be an actor and I tell हम्म. the world. सबसे पहले जब हम बोलते हैं ना दुनिया को कि हमें एक्टर बनना है, तो दुनिया कैसे रिएक्ट करती है? अरे उनको इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस, आईपीएस, आईएएस, ये मैनेजमेंट, आईआईटी, ये तो मालूम है टिपिकल. बट एक्टर बनना है तो मतलब है, एक्टर बनना है कैसे? So they get very this thing, foxed over it. एक बच्चा है या एक बंदा है, उसको एक जहाज से कूदना है, उसको he has to swim to that shore, that side. अब वो कूदा नहीं है. अब his well wishers are telling him, बेटा मत कूदना, तुम कूदोगे तो डूब जाओगे, मत कूदना, ये बहुत हम्म. गहरा पानी है और वहां तक जाना है, नहीं हो पाएगा तुम्हारे से. The guy says, to hell with everything, I made up my mind, I'll jump. अब वो कूद गया है पानी के अंदर. जब वो कूद गया है, वही लोग जो वेल विशर्स कह रहे थे मत कूदना तुम डूब जाओगे, अरे अब तुम कहने का मतलब ही नहीं है तुम डूब जाओगे. अब तो वो बंदा कूद चुका है. अब तो दे शुड ओनली इंकरेज, दे शुड जस्ट चीयर हिम अप, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन, थोड़ा और स्विम करो. अब तो उनको जोश लाना चाहिए बजाय सिंह के नेगेटिविटी, अरे मत जाओ मत जाओ, अब मना किया था इसको जाने के लिए, दैट काइंड ऑफ स्टफ. एक्चुअली हाँ, सर सर आप पहले बोलिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा फिर आपको. बोलिए बोलिए. नहीं नहीं, आई वांट टू हियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हियरिंग योर एनेक्डोट्स, आई जस्ट सो वांट टू हियर दैट. अभी आप जो बता रहे हैं ना इंसिडेंट की, एक बार आप कूद गए उसके बाद पीपल शुड चीयर मी अप. ऑनेस्टली सेइंग, जितने भी मेरे रिलेटिव्स हो गए या मेरे फ्रेंड्स हो गए, दे लिटरली चीयर मी अप.
especially my batchmates, they always cheer me up. What they say is, because many of my batchmates, they are co-founders of really good, successful startups. Like you have got CoinDCX, then you have housing also, Ola is there. So multiple startups are there. So what they tell me, खंडूजा टेंशन ना ले, तेरा भी टाइम आएगा. हमने भी घिसा ही है, तू भी घिसा, लेकिन तेरा भी टाइम आएगा. सो दैट्स हाउ दे चीयर मी अप. दे ऑलवेज से कि तू बस करे जा, सोच मत ज्यादा. क्योंकि ज्यादा सोचेगा ना, सोचने वाले लोग नहीं कर पाते. जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना, वही लोग कुछ कर पाते हैं. सो Right. फोकस रख एग्जीक्यूशन में. बाकी आपने ऐसे एक पहले क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि यहाँ के लोगों को, जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है. सो उसमें एक बहुत प्रैक्टिकल सा एक जवाब देना चाहूंगा मैं कि पहले का जो जमाना था, पहले का, जब मान लीजिए धर्मेंद्र जी आ गए, पंजाब से उठ के आ गए, फोटोज दिखाए और काम मिल गया, ठीक है. तब कंपटीशन इतना नहीं था. तब आपने फोटो दिखाई, आप गुड लुकिंग है, आपको काम मिल गया. लेकिन आज के जमाने में इतने सारे लोग आते हैं बॉम्बे, और जब आपका कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, और उन लाखों लोगों में से किसी एक को आगे जाना है, तो आपको कंपटीशन के लिए, उस कंपटीशन के रिस्पेक्ट के लिए, कुछ भी मानिए, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा. आपको तुक्का मारने नहीं आए हैं. इफ यू आर प्लानिंग टू earn bread and butter for your family by this profession, you have to give that respect to this profession. You have to learn all those things, then move ahead. अगर आप सोच रहे हैं कि एक तुक्के से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप एक फ्लूक मार लेंगे, दो मार लेंगे, तीन मार लेंगे, लेकिन चौथे दिन, जिस दिन आप नेकेड होंगे ना, फिर उसके बाद कोई पूछने नहीं आएगा आपको. सो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितना हो सके अपना होमवर्क बेस्ट रखिए. अगर आपका होमवर्क बेहतर है तो आप सक्सेसफुल बनेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता. क्योंकि हम सब लोग हैं कौन? अगर हम लोग देखें तो हम सब हैं भगवान के बच्चे हैं ना. क्या भगवान हमारा बुरा चाहेगा? किसी भी बच्चे का, किसी का भी बुरा नहीं चाहेगा ना. लेकिन किसके साथ खड़ा होगा? उसके साथ खड़ा होगा जो मेहनत करता है. सिंपल सी बात है. Very तो true. आप चाहे स्पिरिचुअली सोच लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिकली बात कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आपको मेहनत करनी ही करनी है, बस. Very well said by you. Very well put across, in fact. Very well put across. मैं जब थिएटर करा था बम्बई में, and at theater, that's the first time I got an invitation for a TEDx talk, in fact. Oh, तो जब lovely. मैं TEDx पे आया तो ऐसे करते करते तो बौछार लगी. 2019 में तो बौछार लगी बिल्कुल. इतने सारे TEDx talks आए कि भाई कि I was like, I do not know what's happening. Foreign country से भी आए, I do not know what's happening. And from there, because of my talent, training, ability, skill, I would say, or whatever, I'm still learning. And I was learning at that time as well. I transformed that journey a bit ahead into a motivational speaker thereafter. And into a defense analyst. क्योंकि minor tactics तो मैं फौज में सीख चुका था. फौज में बिल्कुल. कैसे क्या करना है. And I had the ability to articulate, to put my thoughts together as a storyteller that I was. And वही चीज अब मैं बारीकी से, अब मैं टीवी पे समझाता हूँ तो लोगों को समझ में आता है कि if I tell them, if I talk to them in a too technical भाषा कि फॉल में ये, आम आदमी के लेवल पे आके समझाता हूँ, तो वही एक चीज प्रूव करती है कि जो ट्रेनिंग लेके आते हैं या जो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं वो धोखा नहीं खाते जिंदगी में, चाहे फिल्मों में हो, चाहे टेलीविजन में हो, चाहे एड्स में हो. So I now, after not being successful in NSD twice, and then I worked with the FTI. I did a lot of short films with them. बल्कि एक फिल्म तो मेरी YouTube पे भी है. तो मेरा 5 सेकंड का रोल है. 5 सेकंड का रोल है उसमें. तो it's there. And and then I was a visiting faculty at Subhash Guys, whistling with international for a few years, in fact, for a couple of years, and we would train the acting students. So now what I can connect with what of my students you say about Stanislavski, about Meisner, and वही चीज आप जो आप कह रहे हैं ना, वही बात. And निशांत, एक बात और मैं कह दूं, मेरे को I am slightly intuitive by nature. जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं. You जितना तुमने सोचा भी नहीं अपने लिए ना, तुम उससे आगे जाने वाले हो भैया. तो कमर कस लो आप. नहीं, मैं सच बता रहा हूँ. थैंक यू. मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वेल विशर्स बहुत है. जैसे अब आप हैं, आप बता रहे हैं मुझे, मेरे पास मेरे पुराने टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, आई थिंक ये प्रिविलेज्ड हूं मैं. इन मामलों में प्रिविलेज्ड हूं मैं कि मेरे पास वेल विशर्स की लाइन है. जो भी लोग जुड़े रहे, हमेशा साथ हैं,
वो बस हमेशा अच्छा ही बोलते हैं और दे बहुत क्रिटिकल फीडबैक देते हैं हमेशा. They'll not try to please me always. They always give me critical feedback. Maybe late night around 2 o'clock they'll just call me and tell me कि क्या तूने बकवास काम किया है, ऐसे नहीं ऐसे कर. So they are one of those also. But I'm Right, thankful. I'm thankful to God. And right. by the way, yes, I never wanted to interrupt you, but you correctly said when you give TED talks also. I have seen your talks. They are amazing. They are motivational, and sometimes I have listened to those talks while working out in the gym. अरे क्या बात है, क्या बात You won't है. even believe. That's So very sweet of you. मेरे लिए ये सारी चीजें ऐसे काम करती है. जब भी मैं कभी भी लो हो गया या फिर मेरी जो स्ट्रैटेजी है, एक हर किसी का एक टेम्पलेट होता है ना कि मैं ये काम करूंगा तो इतना आगे पहुंचूंगा. कभी वो वर्क नहीं कर रही है. आई लिसन टू समवन. उसकी लाइफ से मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता ही मिलता है, हर बार मिलता है. कभी Wow. मैं किसी दिन मैं आशुतोष राणा जी को सुन रहा था, किसी दिन मैं पंकज त्रिपाठी जी को सुन रहा था, किसी दिन मैं ऋतिक को एक इंटरव्यू के लिए सुन रहा था. सो अगर आपको याद हो तो एक उनका एक इंटरव्यू आया था वॉर के टाइम पे. सो इन दैट ही सेड कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म अच्छा करे या ना करे, मतलब ये सब हो या ना हो, बट मैंने क्या किया, मैंने थ्रू आउट दिस प्रोसेस एंजॉय किया. वो बहुत मैटर करता है लाइफ में. Rather than taking a tension or a pressure that yes I have to deliver something great, what I will focus, I'll focus on the process. I'll enjoy it. If I can do good in my present moment, good will happen in the future. If you're just worrying Wow. about the future, you will not focus on the present and you will screw it. So it's always good to be there in that present, enjoy it. Because अगर आज अच्छा है ना तो कल तो अच्छा होना ही है. Because उसका रिजल्ट ही Wow. तो है और क्या है. So Wow. बस Wow. ऐसी सारी चीजें ना, मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं. ये अगेन ये प्रिविलेज भगवान ने दे दिया. दिमाग भी दिया तो भगवान ने दिया, मेरे हाथ में नहीं है ये. उसने दिया, उसने ऐसा सोचना सिखाया, उसने ऐसे लोगों से मिलाया. सो बहुत हद तक क्रेडिट तो उस भगवान का भी है. जब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बंदा लकी है कोई अनलकी है, वो थोड़ा सा वो भी देने वाला होता है. अगर दिमाग उसने दिया तो तुम्हें सही सोचना भी तो सिखाए. Correct, correct. I was watching a video of yours and where you were mentioning about your how it was working with Hrithik Roshan, and you were saying हर रोज शाम को उसके बाद he would ask और आज क्या सीखा, आज की सिखलाई क्या है, आज क्या सीखा, आज कुछ भी हो, whatever, आज सीखने को तो मिला. That was very inspiring. In fact, tell us a bit about Very. more about how it was working with Hrithik Roshan. Yeah. It was very good. So in the beginning, obviously, I was there in complete aura of his. That what a charismatic actor he is. Then gradually, obviously, that once ice broke, we started talking. Then I realized, whatever I have perceived about him via screen, he's actually the same guy. In real life also, he's the same guy. He would focus on the process a lot. What he says in the interview, yes, he's the same guy. He will just wait. Let's say if something which is new, when we were talking about the dance also, so he took, let's say, a good 15-20 days to prepare the dance. Okay. Now what we think, अरे ऋतिक रोशन है ये तो एक दिन में कर लेगा, हमारे को ऐसा लगता है ना. बट नहीं, ऋतिक रोशन खुद यार 15 दिन लेता है किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से, कि वो जब दे तो अपना बेस्ट आउटपुट दे. और Wow. उसके बाद जब हम लोग ये सॉन्ग कर रहे थे तो ड्यूरिंग सॉन्ग ऑल्सो दिस थिंग वॉज ऑलवेज देयर. आज क्या सीखा. तो जब सॉन्ग में हम लोग एज अ टीम वी वर डांसिंग, कई बार होता है ना कि हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते ये सब चीजें. सो ही वुड से तो क्या सीखा आज हम लोगों ने कि हमें कोऑर्डिनेट करना है, तो कैसे करेंगे. सो वी लर्न दैट स्किल ऑल्सो. बिकॉज आपको क्या लगता है कि अरे मैं भी स्टेप कर रहा हूँ, तू भी कर रहा है, सब लोग सिंक में आ जाएंगे. नहीं, when it is about team, you all have to coordinate. तो आज हम लोगों ने क्या कोऑर्डिनेट करना सीखा. किसी दिन और कुछ सीखेंगे. Maybe you will fail, but it's okay. But you will learn. So this is the beauty about this man. That's why he's there on the top. He is delivering, back-to-back blockbusters. And उसका काम भी देखिए ना सर, सुपर 30 करके आते हैं. Yeah. उसके जस्ट बाद आपके पास आती है वॉर, वेयर ही इज लुकिंग डैशिंग. सुपर 30 में एक नॉर्मल बिहारी बंदा,
फिर वापस से अगर आप देखें तो आपके पास आती है फिल्म ये विक्रम वेदा। विक्रम वेदा में आप यूपी के भैया बने घूम रहे हैं। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगी ये फाइटर। So this guy, keeps transforming from one character to the another character. So he enjoys the process, and that's why he's successful because he enjoys. And बहुत सारी चीजें मैं बहुत खुश था कि एक ऐसी एनर्जी के पास गया हूं मैं जिससे सीखने को मिलेगा। मैं तो सबसे पहले वाओ इसी चीज के लिए खुश था जब फिल्म में हुआ भी था कि ऋतिक के साथ काम करने को मिल रहा है। मतलब आप एक ऐसी एनर्जी के पास है जिससे आप सीखेंगे लाइफ में। That's the वाओ best part. वाओ वाओ, दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस निशांत। निशांत, आपसे गुफ्तगू करके इतना अच्छा लग रहा है। वी आर, आई नो यू आर बिजी, वी हैव क्रॉस 50 मिनट्स इन फैक्ट इट्स I बिन could see that also. बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा गुफ्तगू करके। एंड जाते जाते, any last message you would like to throw out from your side to the whole world, to anyone in the universe, to youngsters, to जो बुजुर्ग हैं, जो well wishers हैं, or aspiring, anyone, anything you would like to Okay. say? So I would like to, just share this line with everyone out there, be it, let's say, anyone, if you are an aspirant also for any competitive exam, or if you are doing any work or trying to pursue any skill also, remember this line: you are born with unlimited potential. Just mark these words, write these words somewhere, and trust me, you guys will kill it. You are born with unlimited potential. आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसे होन करने की जरूरत है, बस। That's it. Very well said, very well said. And मैंने आज क्या सीखा वाला, अगर मैं बोलूं तो मैंने ये सीखा है that people think I'm very good at learning lines and learning dialogues or tongue twisters and twisted ones, like including, have you heard, I'm my own grandpa, Nishant? No? So no, I'm my Sunaiye, own sunaiye. grandpa. I'm my own grandpa. It sounds funny, I know, but really so, I am my own grandpa. Let me explain to you how. Many, many years ago, when I was 23, I was married to a widow who was as pretty as could be. Now, this widow had a grown-up daughter who had hair so red that my father fell in love with her, and soon the two were wed. Now, this made my dad my son-in-law and changed my married life, and my daughter now became my mother, since she became my father's wife. Now, to complicate the matter, though it brought me joy, I soon became the father of a bouncing baby boy. Now, this little baby of mine then became a brother-in-law to dad, and so became my uncle, for it made me very sad. For if this little baby of mine was my uncle, then that made him the brother of the widow's grown-up daughter, who, of course, by now was my stepmother. My father's wife then had a son who kept them on the run, and he became my grandchild, for he was my stepdaughter's son. Now, my wife is now my stepmother's mother and makes me blue. Because although she's my wife, she is my grandmother too. Now, if my wife is my grandmother, obviously I'm a grandchild. And every time I think of this, by God, it really drives me wild. For now I've become the strangest case you ever saw. As husband of my own grandma, I am my own grandpa. It sounds funny and complicating, I know, but really so. Thank you. So इस तरीके से ऐसे बहुत ही है. Thank you. So Really बहुत good, बहुत yeah. Lovely, you have this skill, You can mug up those tongue twisters, you difficult know what? lines. Lovely. You know what? You know what? Now one thing I learned, actually skill नहीं है ये कोई भी, trust me, इसके पीछे, ये तो आपने अभी सुन लिया 1-2 मिनट में, ठीक है, मगर इसके पीछे जो जितनी मेहनत लगी है, मेहनत लगती कितने है। बार रटा है, रिकॉर्ड करके सुना है, कितने बार वीडियो रिकॉर्ड किया है, कितने बार पढ़ा है, कितना टाइम लग गया है ये याद करने में, वो मुझे ही मालूम है और किसी को मालूम नहीं होगी. They'll only see those 2 minutes. Similarly, Correct. what you said ना, अब ऋतिक रोशन वो डांस कर लेगा कि भाई इज अ ग्रेट डांसर, तो वो एक दिन में कर लेगा, बट 15-20 डेज वो लगाएंगे, he'll prepare it and then he'll do it. And that is something which a lot of people tell me कि I want to act but I can't dance. But now I will tell them this thing, I'll give them this example. यार क्या बात कर रहे हो यार, अच्छा ये dancer, like what you told me Nishant, that when I saw your steps ना, उफ, और यार ये बंदा बड़ा अच्छा डांस करता है यार. I was totally Thank you. so All credit, all credit goes to my choreographer, Neeraj. Jack. His name is Right. Jack. He spent a lot of hours with me, and every single time, small detailing, he would come and say, "आपको पता है, ऋतिक सर ऐसा करेंगे,
तो आप ना थोड़ा सा ऐसे करिए, ऋतिक सर ऐसा करेंगे, आप भी ऐसे करिए. So he's a sweet guy, very sweet guy. Right, right. So it was amazing being in conversation with you, Nishant, and thank you very much for spending time. And Same take here. care. And we are hoping that I know there are a few releases planned after Fighter as well. And OTT pe ho, kahin pe bhi ho. I really wish you whole lot of success, and you deserve it, buddy. You really deserve it, and you will Thanks a do it. lot. Trust me. Thanks a You lot. can Thanks a lot. probably lick And your I own exam. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल आपके इंट्यूशंस होने चाहिए सही. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आई शुड डू वेल. So at least I'll do well for them, not for me, but yes, for them absolutely, especially. absolutely, Nishant. Thank you, Mohammed. Take care. Bye, yeah. Cheers, yeah. Take care. Take Bye. care. Bye bye.